topic is food pyramid. In previous lecture, we discussed factor meal planning. What are the factors that are affecting in meal planning and the factors that affect the food related behavior and dietary guidelines for Indians. Now, today we discuss the another topic of your second chapter, that is food pyramid. What is this food pyramid? This food pyramid, it is a triangular representation of the food items that we consume or that we serve in individual's menu. ठीक है, ये जो ये फूड पैरामिड है ये एक ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट फूड आइटम्स जो फूड ग्रुप्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन की है इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म एंड वी कैन सर्व द फूड फ्रॉम दैट ट्रायंगुलर फॉर्म इन ईच मेन्यू. ठीक है, it is a diet pyramid or food pyramid triangular diagram representing the optimal number of servings to be eaten each day from each of the basic food groups. जो हमारे पास बेसिक फूड ग्रुप्स है हर एक फूड ग्रुप इसमें रिप्रेजेंट किया है और सर्विंग साइज या पोर्शन साइज भी मेंशन किया है कि किस फूड ग्रुप में आपको कितना कंज्यूम करना है ईच डे. ठीक है, ये स्पेशली ये फूड pyramid और डाइट pyramid का कॉन्सेप्ट था ये स्वीडन इन 1974 में आया. ठीक है, WHO and FAO, these are the food organizations published World Health Organization and Food and Agriculture Organization published guidelines that can effectively be represented in a food pyramid relating to objectives to prevent obesity, chronic diseases, and dental caries based on meta-analysis, though they represent it as a table rather than a pyramid. It means that as per the WHO and FAO representations, they represent some guidelines for individuals so that they can maintain their weight, they can prevent their body from different diseases like obesity, other chronic diseases like heart problem, hypertension, diabetes, other health related complications or dental caries. It means they give us they publish some guidelines by which we can prevent one individual from different health complications. It means when an individual follow that guidelines, they can maintain their body weight, they can prevent different nutritional deficiencies when they follow that guideline. So when this food pyramid was made, they fulfill these guidelines. ठीक है, so food pyramid जब form हो गया, they take these considerations in mind when they prepare this food pyramid. ठीक है, USDA replaces food pyramid with My Plate. ठीक है, इन होप्स टू प्रमोट हेल्थियर ईटिंग. यूएसडीए में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डायटेटिक एसोसिएशन है दे रिप्लेस फूड pyramid. इन्होंने फूड pyramid को नाम दिया माई प्लेट. ठीक है, सो फूड pyramid कुछ नहीं है, इट इज अ ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड ग्रुप्स एंड देयर सर्विंग साइज विच वी प्रिस्क्राइब इन ईच मेन्यू इन अ सिंगल डे. ठीक है, इट मीन्स ये आपको उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया है डिफरेंट फूड ग्रुप्स की उनका सर्विंग साइज कि आप एक दिन में अपने मेन्यू में क्या क्या आपको कंज्यूम करना है सो दैट यू कैन टेक proper balanced diet and your body will fulfill all nutritional requirements which are recommended by RDA. ठीक है, जो हमारी डाइटरी रिकमेंडेशन है उनको फुलफिल करने के लिए हम फूड pyramid को देखते हैं कि हमें पर डे कौन कौन से फूड ग्रुप्स कंज्यूम करने हैं एंड हाउ मच क्वांटिटी वी हैव टू कंज्यूम सो दैट वी कैन प्रिवेंट obesity, hypertension, diabetes, or other health related complications, and we maintain our body weight. ठीक है, hope you understand this food pyramid. See, food pyramid balanced diet for adult man. It means fats and ये यहाँ से फूड pyramid हम फ्रॉम बेस से स्टार्ट करते हैं. सीरियल्स एंड मिलेट्स 30 ग्राम होना चाहिए इंटू 12 टाइम्स. ठीक है,
वेजिटेबल्स 100 ग्राम इंटू 3 टाइम्स, वेजिटेबल्स को आप 3 टाइम्स कंज्यूम कर सकते हैं 100 ग्राम, ठीक है। फ्रूट्स 100 ग्राम 1 टाइम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स 100 ग्राम 3 टाइम्स, पल्सेस वेजिटेबल या 30 ग्राम इंटू 2 नॉन वेजिटेबल अगर आप लेंगे जिसमें आएगा पल्सेस या जैसे प्रोटीन आपको मिल जाएगा 30 ग्राम 1 टाइम, फैट्स एंड ऑयल 5 ग्राम इंटू 5 टाइम्स, शुगर 5 ग्राम इंटू 5 टाइम्स, ठीक है। इट मीन्स एल्डरली मैन रिड्यूस 3 पोर्शंस ऑफ सीरियल एंड मिलेट्स एंड एड एन एक्स्ट्रा सर्विंग ऑफ फ्रूट। जो एल्डरली पर्सन है वो इस फूड पैरामिड को सिर्फ इस ग्रुप में चेंज कर सकता है। जो मैंने कहा कि वो सीरियल्स एंड मिलेट्स 12 टाइम तक 30 ग्राम, इट मीन्स 30 ग्राम इंटू 12 कितना हुआ, इट मीन्स अगर वो दो टाइम सीरियल्स और मिलेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसकी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। बट जो एल्डरली मैन है दे शुड कंज्यूम मोर फ्रूट्स एंड लेस सीरियल मिलेट्स, वो सीलेट्स को सीरियल्स और मिलेट्स को क्वांटिटी कम कर सकता है और फ्रूट्स को ज्यादा कर सकता है, ठीक है। बिकॉज दे नीड मोर फ्रूट्स, बिकॉज जो उनकी मसल्स है वो बहुत वीक हो गई होती है, जो उनकी बोन्स है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो गई होती, बिकॉज ड्यू टू द एज डिजेनरेशन होती है। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनको फिर ज्यादा कंज्यूम करना है सो दैट देयर बॉडी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट, ठीक है। फूड पायरामिड बैलेंस्ड डाइट फॉर एडल्ट वुमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये देखिए 30 ग्राम 9 टाइम्स, फ्रूट सेम जैसे मैन को था, वेजिटेबल्स 100 ग्राम 3 टाइम्स, उनको कितने टाइम्स ही था, मैन को भी 3 टाइम्स ही था, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सेम 100 ग्राम 3 टाइम्स, पल्सेस वेजिटेबल्स अगर आप लेंगे फ्रॉम प्रोटीन सोर्सेज 30 ग्राम 2 टाइम्स, नॉन वेजिटेरियन कोई वेजिटेरियंस, ठीक है, नॉन वेज 30 ग्राम इंटू 1 टाइम, फैट्स एंड ऑयल 5 ग्राम इंटू 4 टाइम्स, शुगर 5 ग्राम इंटू 4 टाइम्स, ठीक है। बट जो मेल है उनको 4 5 5 टाइम्स है, बिकॉज एडल्ट वुमेन जो है दे आर मोर प्रोन टू गेट ओबीज, ठीक है। ये फिजिकली उतनी ये एक्टिव नहीं होती है जितनी मेल होते हैं, मेल इंडिविजुअल्स होते हैं, दैट इज वाई फैट्स एंड शुगर जो कंजप्शन है उन कम किया है, ठीक है, बिकॉज दे आर मोर प्रोन टू गेट ओबीज, ठीक है। ये फूड पायरामिड है एडल्ट वुमेन के लिए। नाउ फूड pyramid balanced diet for adult women, देखो pregnant women fats and oils 2, milk 2 portions, fruit 1, green leafy vegetables half, इट मीन्स ये एक्स्ट्रा पोर्शन है। एक तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वुमेन जो है उसको नॉर्मली इतना कंज्यूम करना है डे में, ठीक है। अब अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उसको ये एक्स्ट्रा लेने हैं, ठीक है। लैक्टेटिंग वुमेन अगर होगी उसको सीरियल 1 पोर्शन इंक्रीज करना है, पल्सेस 2 पोर्शन इंक्रीज करना है, फैट्स एंड ऑयल्स 2 टेबल स्पून इंक्रीज करना है, मिल्क 2, फ्रूट 1, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हाफ। अब अगर लैक्टेटिंग मदर होगी जब वो फीड कर रही होगी बिटवीन 6 to 12 months ऑफ लैक्टेशन, डाइट इनटेक शुड बी ग्रेजुअली ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। इट मीन्स कि जब माँ स्टार्ट करती है लैक्टेशन आफ्टर डिलीवरी टिल 6 मंथ्स तक उसको ये कंज्यूम करना है, एक तो नॉर्मल और इन एडिशन टू नॉर्मल उसको इतना उसमें ऐड करना है। बट जब बच्चा 6 to 12 मंथ्स तक पहुंच सकता है फिर वो नॉर्मल जो रिकमेंडेशन है अडल्ट की वुमेन की वो उससे ही कंज्यूम कर सकती है और उसका हेल्थ मेंटेन रहेगा और उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएगी। अब अगर एल्डरली वुमेन होगी उसको इंक्रीज करना है फ्रूट 1 एंड रिड्यूस सीरियल्स एंड मिलेट उसको 2 ही करना है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर वो सीरियल्स और मिलेट्स को दिन में 9 टाइम्स लेती थी उसको फिर वो 7 टाइम्स ही कम करना है, ठीक है। सो दिस इज ए फूड पैरामिड, इट मीन्स आपको रेफरेंस ये आपके पास ये स्टैंडर्ड्स है आपको इसी को फॉलो अप करना है, देन योर बॉडी विल बी हेल्दी, यू आर फ्री फ्रॉम द डिफरेंट डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज या अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सो ये जो ये फूड पैरामिड बनाया है इट मीन्स ये रिसर्च होके फिर बना है, फिर इसको प्रूव किया है कि नहीं अगर ये इंडिविजुअल जो अडल्ट वुमेन है
इतना कंज्यूम करेगी इन एवरी डे, उसकी जो RDA रिकमेंडेशन है फ्रॉम ICMR जिन्होंने बनाए हैं RDA, उसको वो फुलफिल अचीव अच्छे से कर सकती है। ठीक है, सो अगर प्रेग्नेंट होगी तो इतना एनहांस करना है उसको, एज कम्पेयर टू नॉर्मल लैक्टेटिंग होगी इतना एनहांस करना है। बट व्हेन द मदर ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड इन द मंथ्स ऑफ द 6 to 12 months, she can then take normal diet. ठीक है, hope you understand this. सी, फूड पैरामीटर प्लेट, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जो USDA है उन्होंने फूड पैरामीटर को माई प्लेट तक चेंज किया। ठीक है, ये देखिए, ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप है ना, ये एक फूड ग्रुप है जो हमने प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट फूड ग्रुप्स है। तो हमें हर एक फूड ग्रुप में से एक एक फूड कंज्यूम करना है हर एक मेन्यू में, देन ओनली यू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपको सीरियल ग्रुप से आपको 6 to 11 सर्विंग्स लेने हैं, ये एक ही टाइम पे नहीं, आप अपने दिन में उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट में लिया, फिर मिड मॉर्निंग में लोगी, फिर लंच में, फिर डिनर में। ठीक है, इट मीन्स आपको 6 to 11 सर्विंग को मील्स में डिवाइड करना है। एंड द बेस्ट ऑप्शन इज ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स। ठीक है, सेकेंड ग्रुप इज, और फूड पैरामिड को हम नीचे से पढ़ते हैं फ्रॉम बेस, फ्रूट्स 2 to 4 serving and vegetable group 3 to 5 serving. ठीक है, मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई बीन्स, एग्स एंड नट ग्रुप 2 to 3 सर्विंग्स, मिल्क, योगर्ट एंड चीज ग्रुप 2 to 3, बिकॉज इससे आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगी, इससे आपको वाइटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएगा, इससे आपको एनर्जी या कैलोरीज फुलफिल हो जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज द फैट्स, ऑयल एंड स्वीट्स, जो हम लिटिल बिट यूज करते हैं एज पर द नीड। ठीक है, जैसे फैट नेचुरली अकरिंग या एडिड। ठीक है, एंड द शुगर्स विच वी एड इन टी और इन अदर स्वीट beverages or in sweet desserts. So this pyramid shows different food groups, ठीक है, and their portion size. So when an individual can follow this pyramid, he or she get all the nutritional requirements which are recommended for them as per the age, as per the sex, as per the activity. ठीक है, दैट इज वाई, बिकॉज ये इंडिविजुअल के लिए इजी रह जाता है कि मुझे इस ग्रुप में से भी फूड लेना है, इसमें से भी, इसमें से भी, फ्रॉम दिस ग्रुप ऑल्सो, फ्रॉम दिस ग्रुप ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस ग्रुप ऑल्सो। इट मीन्स ऑल द फूड ग्रुप्स are equally important for an individual, then only he will be nutritionally fit. ठीक है, जो हम ऐसे नॉर्मली अगर हम देखेंगे, हम क्या करते हैं, हम सारी फूड ग्रुप्स कंज्यूम करते हैं? नो, we stick in one or two food groups. We are not taking each and every food item from each food group. That is why our body is suffering from various nutritional deficiencies. ठीक है, so better is when you have knowledge of food groups, when you have knowledge of food pyramid, then there is no problem for an individual to get any type of the nutritional disease. ठीक है, so now you are aware that what are food groups, what is the food pyramid, which food groups are important, and how much we have to take from each food. Then you can aware your siblings, your mothers. Then this information, yeah, this knowledge will transfer from one generation to another. Or in future you organize seminars or debates where you communicate this knowledge to the community, then they get knowledge about food groups, about food pyramid. Then they make the food plan or meal plan for the family as per this pyramid or as per the food group. Then there will be no presence of any type of the nutritional disease. ठीक है, see, food pyramid plate, another representation of the food. These are different representations. ठीक है, grains, vegetables, fruits, milk, meats and beans. ठीक है, from step to figures. For example, अगर आप, मैं आपको ऐसे भी बताऊंगी ये फूड pyramid ऐसे क्यों बनाया है ट्रायंगुलर फॉर्म में,
इसका एम मेन देखिए, अगर आप नॉर्मली आप स्टडी करते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर ऐसे छोड़ेंगे, थर्ड सेमेस्टर पढ़ेंगे, इज इट पॉसिबल? नो, you have to follow the sequence. You have to follow, first you have to cross the first sem, then you get enter into the second sem, then you have to come clear the second sem, then you get into the third sem. So ये एक sequence है, आप किसी step को skip नहीं कर सकते हैं, otherwise you will not reach to the goal. ठीक है, बिकॉज जो आपका गोल है कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, सो आपका वो गोल तब तक क्लियर नहीं, तब तक अचीव नहीं होगा जब तक आप सारे सेमेस्टर्स को स्टेप बाय स्टेप वाइज उसको क्लियर करोगे. सेम इज द केस विद फूड पायरामिड. ठीक है, एक इंडिविजुअल तब तक हेल्दी नहीं रह सकता है, तब तक वो किसी भी डिजीज को न्यूट्रिशनली प्रिवेंट नहीं कर सकता है, जब तक वो इस फूड पैरामिड को स्टेप बाय स्टेप वाइज उसको ये फॉलो अप करेंगे. इट मीन्स उसको हमारे एक इंडिविजुअल के लिए, हेल्थ के लिए ग्रेन्स भी इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, मिल्क भी एंड मीट्स एंड बीन्स भी, because different food groups provide us different nutrients. This group provides us calories, so proteins, fat, vitamins and minerals, it is deficient. So where we get these nutrients? That it means we have to take another food group like vegetables, fruits. ठीक है, अब इन तीन ग्रुप से आपको प्रोटीन नहीं मिल गया, so you have to take another food group milk. ठीक है, meats and beans, salt, sugar. It means all the food groups are important. We should not skip any food group. ठीक है, हमें कोई भी फूड ग्रुप स्किप नहीं करना है, बिकॉज हर एक फूड ग्रुप अपना अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी नीड्स फुलफिल हो जाती है और हम अपनी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं डिफरेंट डिजीज से. होप यू अंडरस्टैंड फूड pyramid. फूड pyramid टू प्लेट. ठीक है, ये भी देखिए, इट मींस अगर आपने ब्रेकफास्ट लिया, ब्रेकफास्ट में आपको ये सारा होना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन कश्मीर, यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं? चाय इन एन एम्प्टी स्टमक, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ठीक है, हम सुबह ब्रेकफास्ट, क्या हमें ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए. आवर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग एंड डिनर शुड बी लाइक ए पॉपर. इट मीन्स कि पोर की तरफ हमारा डिनर होना चाहिए, एक गरीब घराने की तरफ हमारा डिनर होना चाहिए, बट ब्रेकफास्ट हमारा हैवी होना चाहिए. बट सी हियर वी हैव अपोजिट, हमारा ब्रेकफास्ट बहुत लाइट होता है एंड आवर डिनर इज वेरी हैवी. बट दिस इज अ रॉन्ग वे, दिस इज अ रॉन्ग थिंग. वी शुड अवॉइड दिस थिंग. आवर ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग. एक बादशाह की तरह हमारा ब्रेकफास्ट इतना हैवी होना चाहिए, उसमें कैलोरीज भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी, वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स भी, विटामिन्स भी, मिनरल्स भी, फैट्स भी एंड शुगर्स भी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चपाती लेते हैं तो हो गया सीरियल ग्रुप, एग ले लो प्रोटीन ग्रुप. ठीक है, आप वेजिटेबल कुछ करी बनाओ, उसको रोटी के साथ आप खाओ, तो विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाएंगे. आप मिल्क, ठीक है, आपको मिल जाएगा, या चाय आप लेते उसके साथ मिल्क में भी होता है या उसमें सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, बटर, आपको फैट मिल सकता है. सो हमें हर एक मेन्यू में सारी न्यूट्रिएंट्स, सारी फूड ग्रुप्स प्रेजेंट होनी चाहिए. देन ओनली योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो आपकी बॉडी डिमांड है, जो आपकी बॉडी को रिकमेंडेशन है एज पर ICMR. बिकॉज आप देखिए हमारे सामने स्टैंडर्ड्स होते हैं, हम उसके साथ कंपेयर करते हैं कि मैं इसके साथ compete करती हूँ कि नहीं. जैसे HB है, आपको कहाँ पता है कि आपका HB लो है या हाई है? आपके पास रेफरेंस वैल्यूज है. इट मीन्स कि आपको पता है कि मैं वुमेन हूँ, मेरी बॉडी में 12 to 30 ग्राम HB होना चाहिए. सो जब आप टेस्ट करते हैं, आप अपने HB को उस नॉर्मल लेवल से कंपेयर करते हैं, उसके बाद आपको पता चलती है कि आपके बॉडी में HB कम है या ज्यादा है. सेम इज द केस विद न्यूट्रिशन. ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, they provide RDA, recommended dietary allowance. ठीक है, for each individual. ठीक है,
हम उसके साथ हमें कंपेयर करना है कि हमारी बॉडी जो हमारा डाइट है जो वो कंज्यूम करती है, क्या उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, क्या उसको वो फुलफिल होती है कि नहीं। इट मीन्स कि अगर हम उससे डिविएट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी सफर करेगी डिफिशियंसी से। या अगर हमारी बॉडी एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स लेती है एज पर द रिकमेंडेशन, तो हमारी बॉडी में जो है ओबेसिटी हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, या लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है। दैट इज वाई स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट with which you compare your requirements. ठीक है, this is the another representation of food pyramid. ठीक है, 40% आपको सीरियल से होना चाहिए, 35% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन सोर्स 20% एंड 5% फैट्स, ऑयल, शुगर एंड स्वीट. So these are the different representations of the food pyramid. It means food pyramid, it is a triangular representation of food items which are taken from each food group, and with the representation of different food items. This pyramid also shows the serving size or portion size. ठीक है, so when we follow this food pyramid we will meet our goal, especially which goal, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट गोल. तो जब आप इस फूड पैरामिड को हर एक मेन्यू में आप इसको फॉलो करेंगे, जो भी बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएंगी. आपका डाइट किसी भी टाइम पे डेफिशिएंट नहीं होगा किसी भी न्यूट्रिएंट में. बिकॉज अगर मैं ऐसे रफली कभी मील प्रिपेयर करती हूँ, मे भी स्किप हो जाएगा कोई फूड आइटम जो न्यूट्री फॉर एग्जांपल प्रोटीन में रिच होगा या विटामिन में रिच होगा. बट जब आपके पास फूड पायरामिड होगा या फूड ग्रुप होगा, आपको पता है मुझे नहीं इस ग्रुप में से भी एक फूड लेना, इसमें से भी लेना, इसमें से भी लेना है, देन आई गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, आपको पता है कि अगर मैं ये सारे चारों फूड ग्रुप्स कंज्यूम करूंगी तो आपकी बॉडी को सारी न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो जाएंगी. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस food pyramid topic. Thank you so much for today's. So this was the food pyramid. Now the last one is the dietary goals. ठीक है, what are the dietary goals which we have to achieve? Maintenance of state of positive health and optimal performance in population at large by maintaining ideal body weight. It means you have to maintain the balance between consumption and expenditure. तब जाके आपका जो वेट है आइडियल बॉडी वेट वो मेंटेन हो जाएगा. जितना आप कंज्यूम करते हो आपको उसको एक्सपेंड करना है. अगर कुछ ऐसी ही बॉडी में रहा वो स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वेट फिर दिन ब दिन एनहांस हो जाता है. मेजरमेंट ऑफ एडवोकेट न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स. ठीक है, बिकॉज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स के न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमें मेंटेन करना है, मेजर करना है, क्या ये न्यूट्रिशनली फिट है, हेल्दी फिट है, अदरवाइज इफेक्ट होगा न्यू बॉर्न बेबी पे. ठीक है, improvement of birth weight and promotion of growth of infant children and adolescents to achieve their full genetic potential. Because ये 3 periods of life है, यहाँ पे growth and development जो होती है वो rapid होती है. So we have to take more attention when the person is in these 3 age groups. ठीक है, हमें उनका वेट मेंटेन करना है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको हमें फुलफिल करना है, अदरवाइज उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, अचीवमेंट ऑफ एडवोकेसी इन ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस. हमें यारा ये मकसद है कि जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स है उनको हमें फुलफिल करना है, सो दैट हम डेफिशिएंसी डिजीज से अपने आप को बचा सके. प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जो भी क्रॉनिक डिजीजेस है लाइक हाइपरटेंशन है, किडनी प्रॉब्लम है, लिवर डिजीजेस है, जो डाइट के साथ रिलेटेड है उसको हमें प्रिवेंट करना है थ्रू डाइट. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम होगी, आपको पता है मुझे इसको सोडियम भी कम करना है, प्रोटीन भी कम करना है, सो दैट उसकी किडनीज पे ज्यादा लोड ना पड़े. हाइपरटेंशन है तो मुझे उसको सोडियम कंटेंट कम करना है, सो दैट उसका बीपी ना बढ़ पाए. बिकॉज जो भी न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिजीजेस है उनको हम सिर्फ ट्रीट और मैनेज कर सकते हैं थ्रू डाइट. तो ये आपको माइंड में रखना है, ये हमारा डाइटरी गोल है. मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ द एल्डरली एंड इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी.
बिकॉज एल्डरली एज जो है यहाँ पे फिर बहुत सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है। सो हमें ज़्यादा उनका न्यूट्रिशनल ध्यान रखना है सो दैट वी कैन इंक्रीज देयर शैलो लाइफ। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फूड pyramid and dietary goals. So with this we complete our second chapter. Hope dear students you understand all these topics which comes in the second chapter. If anyone have any confusion regarding anything, any topic, please let me inform in our WhatsApp group. Thank you so